everyone and welcome to the second video of 3D geometry. In today's video, we will discuss how to represent lines in a 3D plane. So let's talk about how to find the equation of line. So basically for equation of line, you can find the equation of line by two ways. First, if a point is given which is passing through the line and it is represented by a vector, or its coordinates I can say are x1, y1, z1, and is parallel to the given vector or parallel to a vector whose you can say coordinates are denoted by a, b, c, then the vector equation of a line is r vector equals to a vector plus lambda b vector, where obviously b vector represents the direction of the line in which the line is there and a represents the passing point. Now, any vector equation can be easily converted into Cartesian form, or Cartesian equation can be easily converted into vector form. Let me show you how. If in place of r, since r is a vector which is any point on the line, so I can represent r vector as xi cap plus yj cap plus zk cap. So if r vector is this, so xi cap plus yj cap plus zk cap is equal to a vector, that is xi cap plus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap plus lambda times b vector, and the coordinates of b is a I cap plus b j cap plus c k cap. So children, if I equate the coefficient of I cap both sides, can I say x is equal to x1 plus lambda a, y is equal to y1 plus lambda b, and z is equal to z1 plus lambda c. So if I want to find the value of lambda, can I say it is x minus x1 by a? Similarly, here lambda is y minus y1 by b, and here lambda is z minus z1 by c. So check here, this is the Cartesian equation of a line, where again x1, y1, z1 represents the passing point and a, b, c represents the direction ratios of b vector, your coordinates of b vector. Now, as you have already seen in the first video that a, b, c और एल एम एन प्रोपोर्शनल होते हैं, तो चाहे मैं ए बी सी लिखूं चाहे मैं एल एम एन लिखूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग. That is the Cartesian equation of line. Now, if you want to find the equation of line, can also be found out using given 2 points on the line. Suppose this is one point a vector is one point whose coordinates are x1, y1, z1, and b is another point whose coordinates are x2, y2, z2. Then the vector equation of the line is again r vector equals to a vector plus lambda b vector minus a vector. अब ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए, b माइनस a जो है वो डायरेक्शन आया है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी का भी डायरेक्शन, जैसे ये पॉइंट अगर मैं सपोज P ले लूं और इसे Q ले लूं, तो PQ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है B के पोजीशन, Q के पोजीशन वेक्टर माइनस दिस पोजीशन वेक्टर. दिस इज हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन. सो बेसिकली दिस एंड दिस इज वन एंड द सेम थिंग. जस्ट बिकॉज कि इसमें दो पासिंग पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्शन जो है वो B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गई. सिमिलरली अगर आपको इसका कार्टेशियन फॉर्मूला देखना है, तो कार्टेशियन फॉर्मूला इज ऑल्सो द सेम. जस्ट इन प्लेस ऑफ A, B एंड C डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. तो डायरेक्शन रेशियोज अगेन आपको निकालने आते हैं, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 when these are the points passing through the line. So that is the two forms of line which you should know. एक passing point और एक passing point and direction is given, and दूसरा दो passing points are given. Let's move ahead. How to find the angle between two lines? Again, this is a standard form of line in the vector form. R1 vector equals to A1 vector plus lambda B1 vector, and R2 vector is A2 vector plus mu times B2 vector. So cos theta is angle between the directions. So direction is represented by B1 vector and B2 vector. So ये formula हम already सीख चुके हैं in straight lines class 11th, that cos theta is mod of b1 dot b2 vector upon magnitude of b1 b2. अब आपको पता है b1 वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो a1, b1, c1 होते हैं, एंड b2 वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a2, b2 और c2 होते हैं. तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो आई कैन डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये भी होता है
a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. So that is how we find the formula in the Cartesian form. So हर formula वेक्टर कार्टेशियन दोनों फॉर्म में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक भी अगर आप लर्न कर लोगे तो आसानी हो जाएगी. तो मुझे सारे वेक्टर फॉर्मुलेज लर्न है, कार्टेशियन में अपने आप डिराइव कर लेती हूँ. Okay, so now the special case you should know this that अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो जाएगा और तो सारा का सारा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. तो कैन आई से अगर थीटा 90 है तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर जीरो होगा, राइट? और b1 डॉट b2 जीरो मतलब आपको अगेन डॉट करना आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो. अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल मीन्स वन अपॉन दिस विल बी इक्वल टू जीरो, वो इनफाइनाइट हो जाएगा. तो यानी कि वो डायरेक्शन जो उसके डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो गए. a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 इज इक्वल टू एनी लैम्डा. सो दैट इज द केस ऑफ पैरेलल. इन केस ऑफ पैरेलल तो दिस कैन बी शॉर्टकट. अगर आपको डायरेक्टली दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो. अगर पैरेलल प्रूव करना है तो आप उनके डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल प्रूव कर सकते हो. This is angle between two lines. The next formula is how to find distance between two skew lines. Skew lines क्या होती हैं पहले तो ये पता होना चाहिए. ऐसी लाइंस जो नॉन पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग है. यानी कि जब हम 3D में लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो स्पेस में है लाइन, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल होंगी, इसका मतलब वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी. कभी कभी नॉन पैरेलल लाइंस भी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. सो दिस यू कैन सी इन एनी ऑफ द वीडियोस, ओके, इफ यू वांट टू सी कि स्क्यू लाइंस कहते किसे हैं. But since I am concentrating only on the formulas and its application, so I will not get into all this. So let again same, let R1 equals to A1 plus lambda B1 vector and R2 is equal to A2 plus mu times B2 vector represent two lines. Then the distance between these two lines is represented by magnitude, क्योंकि positive है, यानी कि absolute value of B1 vector cross B2 vector dot a2 minus a1 vector upon magnitude of b1 cross b2. That is how you find the distance between two skew lines which are non-parallel lines or non-intersecting lines. So next, how to find the distance between two parallel lines. तो पहले तो parallel lines आपको clearly दिख जाएंगी. क्यों, क्या दिखेगा? ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि सिर्फ म्यू और लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जो एक्चुअल बी होगा वो सेम होगा. सो देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी वेक्टर क्रॉस a2 minus a1 vector. So this is b vector cross a2 minus a1 vector upon magnitude of b vector. NCERT में शायद ये गलती से डॉट लिखा हुआ है, so please ensure that यहाँ पे क्रॉस होता है और whereas इस साइड डॉट होता है. So this is what you have to learn. So these are all the formulas of lines you should know. पहला लाइंस होती कैसे, निकालते कैसे हैं, ठीक है. दूसरा एंगल बिटवीन लाइंस क्या होती हैं, ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर एंगल बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होती हैं. स्क्यू लाइंस मींस जो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. एंड द फिफ्थ वन, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है. सो दीज आर ऑल द फॉर्मुलाज ऑफ लाइंस you should know. Now let's begin with exercise 11.2. Show that three lines with direction cosines this are mutually perpendicular. तो अगेन क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, अपॉन में चेक करो, डिनोमिनेटर सबके सेम है. सो आप चेक कर सकते हो. कैन आई से जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 12 -3 और -4 होगा. सिमिलरली जो a2 b2 c2 है वो 4 12 and 3 होगा. एंड सिमिलरली a3 b3 c3 है वो 3 -4 और 12 होगा. और ऐसा कैसे पता चला हमें? आपको याद है डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर क्योंकि सबका सेम है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरे
ए बी एंड सी हैं। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि A1 A2 अगेन लॉजिक, A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली A2 के साथ A3 का ये सेम रिलेशन, A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 भी 0 होना चाहिए। एंड द लास्ट A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 भी 0 होना चाहिए। सो यू कैन चेक दैट, अगर ऐसा है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम लॉजिक से करना है, बस 2 में कैसे निकालना है आपको पता होना चाहिए। A1 B1 C1 जब पासिंग पॉइंट गिवन होते हैं तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सो दैट इज हाउ आप A1 B1 C1 निकाल लोगे। सिमिलरली A2 B2 एंड C2 भी निकाल लोगे बाय अगेन अनदर 2 लाइन्स जो दूसरे लाइन से पास करते हैं। और क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है तो आपको रिलेशन पता ही है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सेम लॉजिक, अगेन सेम लॉजिक फॉर द थर्ड क्वेश्चन, पहले रेशियोज निकाल लो, पासिंग पॉइंट गिवन है, और पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होना है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। दिस इज द लॉजिक फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now, for question number 4, find the equation of a line passing through this. Passing through this means this is A vector, I cap plus 2j cap plus 3k cap. And parallel means this is B vector. Parallel means in the direction of. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है. Parallel vector means direction vector. This you should be very well aware of. So आपको equation of line पता है, R vector is A vector plus lambda B vector, where A is the passing point and B is the direction. So that is question number 4 for you. Similarly, question number 5, find the equation of line in the Cartesian and the vector. दोनों फॉर्म में फाइंड करनी है. Position vector passes through this मतलब ये A vector है एंड इन द डायरेक्शन मीन्स ये बी वेक्टर है. अगेन डायरेक्टली ये सेम फॉर्मूला लग गया, ए और बी गिवन है, ये तो हो गया कार्टीज वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म आपको याद है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, वेर ए वेक्टर के जो पोजिशंस यानी कि 2 माइनस 1 4, ए वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 होते हैं, और b वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है 1 2 एंड -1 वो a b और c होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. और अगर बाय चांस आप ये फॉर्मूला भूल गए हो तो मैंने आपको अगेन सिखाया था, आप r वेक्टर की जगह पुट कर दीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और आप राइट साइड को इक्वेट कर लीजिए आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ, के कैप वाला के कैप के साथ, एंड यू विल गेट योर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. ऑलराइट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो सेम वे में होना है. लेट मी जस्ट शो यू क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस. पासिंग थ्रू मीन्स ये ए वेक्टर हो गया बेटा, सो -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, या मैं ये भी लिख सकती हूँ ये x1 y1 z1 हो गया, राइट अगर मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है. एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, सिंस ये लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल मीन्स इसका जो बी वेक्टर, कैन यू फाइंड आउट बी वेक्टर, इसका बी वेक्टर होगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप चिल्ड्रन. सो इसका बी वेक्टर और जो गिवन लाइन है उसका बी वेक्टर सेम है. सो आपके पास ए वेक्टर भी आ गया, बी वेक्टर भी आ गया, आप वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो और इसमें पुट करके कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो. सो दिस इज ए बी एंड सी. जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आई कैप जे कैप के कैप के, दैट इज ए बी एंड सी, एंड x1 y1 z1 आर पासिंग पॉइंट. आई एम अगेन रिपीटिंग. सो अगेन if you see question number 7 also same way में करना है. कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो आपका कार्टेशियन इक्वेशन है यानी कि x माइनस एक्स वन बाई 3 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, सॉरी
by A. This is B is equal to Z minus Z1 by C. If I can compare, चेक करो x, y, z तीनों के कोफिशिएंट 1 है, ये ध्यान रखना है. तो हमारा x1 हो जाएगा 5, y1 हो जाएगा -4 क्योंकि यहाँ नेगेटिव चाहिए था, एंड z1 हो जाएगा 6. और आपके पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 2 गिवन है, राइट. सो अब आप ऑलरेडी आपका वेक्टर फॉर्म क्या है? r वेक्टर इज a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a वेक्टर, right? 5i cap minus 4j cap plus 6k cap, and this is the coordinate of b vector, that is 3i cap plus 7j cap plus 2k cap. So you can just put it here and get your answer. That is question number 7 for you. Question number 8. Find the vector and Cartesian equation of the line passing through origin. एक तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो कैन आई से ए वेक्टर विल बी 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, एंड दूसरा किससे पास कर रही है? बी वेक्टर, यानी कि 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. अब क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है चिल्ड्रन, सो इसमें फॉर्मूला लगेगा आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सिंस बोथ आर द पासिंग पॉइंट. उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दी है. सो आर वेक्टर इक्वल्स टू, इफ आई वांट टू राइट, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैन आई से इट इज लैम्डा टाइम 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. और अगर मुझे इसे, ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गई, अगर मुझे इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दूं, और मैं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ इससे 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप से इक्वेट कर लूं, सो कैन आई से x इज इक्वल टू 5 लैम्डा, राइट, y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा. सो कैन आई से x by 5 is equal to y by minus 2 is equal to z by 3 is equal to lambda. चेक करो, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला भी तो यही था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. सो इंस्टेड ये पूरा फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन सेव ऑन टाइम इन क्वेश्चन नंबर 8. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो जस्ट 8 के जैसे, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, सो पासिंग पॉइंट दोनों पासिंग है, सो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. कार्टेशियन फॉर्म में अगेन आपको कन्वर्ट करना आता ही है, नहीं तो फॉर्मूला भी आपको आता ही है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट. So that is question number 9 for you. Question number 10, 11, 12, 13, ये सारे same हैं. Let me just show you. Question number 10, angle between two lines आपको form करना है. चेक करो, ये A vector है, ये B vector है. तो can I say this is B1 vector, this one, and this is B2 vector, right children? Direction vector. तो angle between हमने cos theta अभी सीखा था, magnitude of b1 dot b2 vector upon individual magnitudes of b1 b2. आपको सब कुछ फाइंड करना आता ही है. डॉट प्रोडक्ट भी आपको आता है, i वाले i के साथ, j वाले j के साथ, k वाले k के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं. अगर आप चाहो तो मैं करके दिखा देती हूँ. दिस इज 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट. सिमिलरली ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम, ये b1 वेक्टर b2 वेक्टर cos थीटा फाइंड कर लो, राइट. सिमिलरली क्वेश्चन इसमें देखिए, अगेन कार्टेशियन इक्वेशन में नीचे वाले b वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z 1 है. तो ये याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ मतलब x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x, y, z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, जो कि है. इसका मतलब आपका
B1 वेक्टर क्या, अगर आप B1 वेक्टर चाहो वो क्या हो गया, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, और आपका B2 वेक्टर क्या हो गया, -1i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप, राइट. अगेन आप इसमें सेम फॉर्मूला लगा लोगे, राइट चिल्ड्रन. सो that is how you will find out question number 11. Let's talk about, तो आपको इसमें बड़ा फॉर्मूला यानी कि ये वाला cos थीटा इक्वल्स टू कार्टेशियन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ये लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये वाला लर्न है तो यू कैन डू इट एनीवेज. लेट्स टॉक अबाउट, देर इज अ स्पेशलिटी. क्वेश्चन नंबर 12 में एक चीज है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं. लेट मी शो यू कि वो क्या गलती है जो क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चे करते हैं. लेट मी जस्ट अनडू अ बिट because I need that formula. Okay, so if I want you to solve question number 12, again same formula, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसमें B और C होता है. सो क्वेश्चन नंबर 12 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों, चेक करो. x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. तो अगर मैंने साइन चेंज किया है तो डिनोमिनेटर का भी साइन चेंज होगा. ऊपर से अगर मैं 7 हटाऊंगी तो 7 को, न्यूमरेटर को 7 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू z माइनस 3/2. Similarly, इधर also if I have to convert this equation into standard form, x minus 1 यानी कि मैंने -7 से डिवाइड किया है तो -3p अपॉन 7, राइट, इज इक्वल टू माई y minus 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z minus 6 अपॉन -5. So now find the value of p so that this and this are right angles. तो हमें पता है कि अगर राइट एंगल्स हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होते हैं. ये हमने स्पेशल केस में ऑलरेडी पढ़ा था. तो दिस इज a1 माइनस 3 इंटू a2, दिस इज a2 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 into -5 is equal to 0 and you can get the value of p. राइट. क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी फंडे पे बेस्ड है, चेक करो. क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम फंडा, यहाँ तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो अगेन आपको ये दिख रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2. आपको शो करना है वो परपेंडिकुलर है. शो मीन्स आप LHS सॉल्व कर लीजिए. a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2. चेक कर लीजिए क्या ये 0 आ रहा है. तो 7 minus 10 plus 3, yes, it is coming out to be 0. So yes, the lines are perpendicular. That is how question number 13 has to be done. Okay, now question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे ही आपको पता चलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमने दो फॉर्मूले लर्न किए थे. एक था b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2. एक तो हमने ये फॉर्मूला लर्न किया था, और एक हमने लर्न किया था b वेक्टर क्रॉस a2 minus a1 upon magnitude of b vector. ये this is for parallel lines and this is for skew lines. Skew lines means non-parallel, non-intersecting lines. तो पहले तो हमें इसके कोफिशिएंट देख के ये चेक करना है कि लाइन पैरेलल तो नहीं है. चेक करिए क्वेश्चन नंबर 14 में. दिस इज i1 -1 1 और ये है 2 1 2. तो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है ना बेटा. 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/1. सो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस इज अगेन यू नो हाउ टू फाइंड. दिस इज a1 वेक्टर, दिस इज b1 वेक्टर, दिस वन इज
A2 वेक्टर, दिस इज B2 वेक्टर। अगेन आपको सब कुछ आता है, आपको याद है जब हमें B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है तो वो क्या होगा, एक 2/2 डिटर्मिनेंट बनेगा I J K में 1 minus 1 1 2 1 2। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व आई जे। अब B1 क्रॉस B2 जो कि हमारा कुछ I का कोफिशिएंट प्लस J का समथिंग प्लस और माइनस वॉट एवर J का कोफिशिएंट एंड K का कोफिशिएंट ये आएगा। ठीक है, फिर हम इसका डॉट कर देंगे इसके साथ, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ जो भी यहाँ पे आया है, सपोज ये ABC आया, a square plus b square plus c square. That is how we find magnitude of B1 cross B2. So I want you to do the question on your own. I am not going to help you out. Let's talk about the next question. Question number 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करिए कौन सा लॉजिक, सेम लॉजिक लगना है। सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा 15 में भी क्या लाइन पैरेलल तो नहीं है, चेक कर लो। 7/1 इज नॉट इक्वल टू -6/-2। सो ऑब्वियसली आपका B1 वेक्टर दिख रहा है आपको, जो कि है 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, और आपको B2 वेक्टर भी क्लियरली दिख रहा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में भी स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगेगा। सो दैट इज हाउ। एंड अगेन A2 और B2 वेक्टर्स भी दिख रहे होंगे, पासिंग वेक्टर्स। इस केस में A1 वेक्टर क्या है चेक करो, x माइनस x1 यानी कि माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप इज पासिंग वेक्टर। सिमिलरली A2 वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, दैट इज A2 वेक्टर। कहाँ से आया आपको याद होना चाहिए, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। सो जो x1 y1 z1 होते हैं वो a वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं पासिंग पॉइंट के, और जो a b c होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं डायरेक्शन वेक्टर के यानी कि b वेक्टर के। सिमिलरली चेक करिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। अगेन स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज B1 vector, this is B2 vector, this is A1 vector, this is A2 vector. Again, same formula. So this is a very, very important skew and parallel lines. Let's talk about the last question. Again, last question थोड़ा सा दिखने में लगता है कि difficult है, लेकिन actually में difficult नहीं है। The lines are not in the standard form. तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी कि आप इसे ओपन कर दीजिए, i कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2t k कैप। अब जब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो r वेक्टर इज i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर सारे t वाले एक साथ लिख लीजिए माइनस i कैप प्लस j कैप minus 2k cap. So now this is A1 vector, this is B1 vector. Let's also calculate for the next line, जो आपको एक इसकी अगली लाइन गिवन है। चेक करते हैं तो क्या कैसे आ रहा है। अगेन ओपन कर लीजिए नेक्स्ट लाइन को भी, R वेक्टर इज S I कैप प्लस I कैप प्लस 2S J कैप माइनस J कैप minus 2s k cap minus k cap. Okay, let's again take सारे i cap minus j cap minus k cap एक साथ, और सारे s वाले एक साथ, that is i cap plus 2 j cap minus 2 k cap। चेक करिए क्या ये प्रोपोर्शनल है, नहीं ये प्रोपोर्शनल हमारे नहीं आए। राइट चिल्ड्रन, अगेन इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, अगेन क्लियर है कि स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगेगा। तो अभी एक्सरसाइज में हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो पैरेलल है। तो सपोज करो ये पैरेलल वाला क्वेश्चन कैसे होता, सपोज करो इसी में मैं चेंज कर देती, सपोज ये -1 है, ये -2 है, और यहाँ पे भी सपोज करिए ये -2 होता अगर,
तो चेक करिए ये पैरेलल होते हैं ना चिल्ड्रन. -1/1 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए था, -2/2. सो दीज ऑल आर प्रोपोर्शनल. अगर ये सारे प्रोपोर्शनल है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि दिस विल नॉट बी टेकन एज b1, दिस विल बी टेकन एज b वेक्टर ओनली. सो b वेक्टर क्रॉस इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, b vector magnitude of b vector cross a2 minus a1 upon magnitude of b. That is the formula of distance between parallel lines. So this is what you have to learn from the lines. That's it. Only 5 formulas. So these, okay. So this is all about all the lines. If you still have any doubts in this chapter, please let me know. Thank you.